Hello children. Today we will start second application of dimensional analysis. In the first application we have done about the correctness of the dimensional formula. In that application you have to find the dimensional formula of left hand side and the dimensional formula of right hand side. If both are equal, then equation will be correct, and if both are not equal, then equation will not be correct. Now in the second application, like quantities can be added or like quantities can be subtracted. Here we can write L plus L equal to L, means length plus length. Answer will be in length. And L minus L equal to L, means length minus length. Answer will be length. Now we can take another examples. 2 kilometer plus 3 kilometer. Answer will be 5 kilometer. 5 kilometer minus 2 kilometer. Answer will be 3 kilometer. 3 meter per second plus 2 meter per second. Answer will be 5 meter per second. Here in this first example, units are kilometer. Units are kilometer. So the answer has units kilometer. In the second example, units are kilometer. Here units are kilometer. So answer will be in kilometer. In the third example, 3 meter per second is given. Meter per second is a unit of velocity. 3 meter per second plus 2 meter per second. Answer will be 5 meter per second, means velocity plus velocity. Answer will be in velocity. If it is given to us that 3 kilometer plus 2 meter per second, what will be the answer of this? Here kilometer is the unit of distance, meter per second is the unit of velocity or speed. It is distance. Distance and velocity both are different physical quantities. Distance and velocities both are different physical quantities. Therefore we cannot add different physical quantities or we cannot subtract different physical quantities. तो therefore distance और velocity को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका कुछ भी आंसर नहीं होगा. तो therefore no result we obtain. So we can say that like quantities only can be added. Kilometer plus kilometer, answer will be in kilometer. Like quantities can be added. Like quantities means length plus length, distance and distance. डिस्टेंस और डिस्टेंस को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर डिस्टेंस में आएगा. डिस्टेंस और डिस्टेंस को अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर डिस्टेंस में आएगा. वेलोसिटी और वेलोसिटी को अगर ऐड करेंगे तो आंसर वेलोसिटी होगा. और अगर आप ये कि डिफरेंट यूनिट्स को अगर आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है, ये आपके पास वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस और वेलोसिटी का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, उसका कोई भी आउटपुट नहीं होगा. ठीक है. तो देयरफॉर इस इक्वेशन, इस सेकंड एप्लीकेशन के अंदर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कि जो लाइक क्वांटिटीज़ होती हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटीज़ को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेंथ और लेंथ को ऐड करेंगे तो आंसर लेंथ आएगा. लेंथ में से लेंथ को आंसर करेंगे तो आंसर लेंथ में आएगा. और अगर आप वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करेंगे तो आंसर आएगा वेलोसिटी. वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो आंसर आएगा वेलोसिटी. अगर आप टाइम प्लस टाइम करेंगे तो देयरफॉर अगर आप लिखेंगे टाइम प्लस टाइम तो जो आंसर है वो भी किस में होगा, वो भी आपके पास टाइम में आएगा. अगर सपोज करो आप बोलते हैं कि प्रेशर आपके पास है, अगर आप लिखते हैं प्रेशर प्लस प्रेशर तो देयरफॉर प्रेशर प्लस प्रेशर करने पर जो आपके पास आंसर आएगा तो वो जो होगा उसके जो यूनिट्स होंगे वो किसके होंगे, वो प्रेशर के ही यूनिट्स को आप यूज़ करेंगे. तो देयरफॉर टाइम और टाइम सेम क्वांटिटी है तो आंसर टाइम्स में आएगा. यूनिट हम टाइम का यूज़ करेंगे, डायमेंशन हम टाइम का यूज़ करेंगे. प्रेशर प्लस प्रेशर करेंगे, दोनों सेम क्वांटिटी है तो आंसर जो है वो भी प्रेशर में आएगा. तो देयरफॉर हम यूनिट्स प्रेशर का यूज़ करेंगे और जो हम डायमेंशन फार्मूला वो भी हम प्रेशर का यूज़ करेंगे. अब हम इस पर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं. फाइंड द डायमेंशंस फार्मूला ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन v equal a plus bt. It is given in the question v is velocity and t is time, where a and b are constant. We have to find the dimension formula of a and b. Now according to the equation v equal a plus bt.
नाउ अभी हमने इससे पहले एप्लीकेशन में यूज़ किया था, लेंथ प्लस लेंथ आंसर लेंथ होगा। नाउ ये वेलोसिटी है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू एल, ये लेंथ कैसे आया था, हमने लेंथ और लेंथ दोनों को ऐड किया था तो आंसर लेंथ आया था। सेम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। v आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी आप कैसे ले सकते हैं, ये प्लस है, अगर आप वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करेंगे तो आंसर वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी अगर ऐड करेंगे तो आंसर वेलोसिटी आएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। नाउ वेलोसिटी a प्लस बी टी, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, आप इसे कंपेयर करो तो देयरफॉर ये जो पार्ट a है, दिस वन, दिस a, दिस इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, a इक्वल है वेलोसिटी के, कंपेयर करने पर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला m0 l1 t minus 1, तो देयरफॉर डायमेंशन फार्मूला ऑफ a विल बी m0 l1 t minus 1। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड को दोबारा कंपेयर करो, बी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, नाउ हेयर बी टी दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। नाउ आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है बी के लिए, बी इंटू टी टाइम, टाइम का डायमेंशन दिस इज t1, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला l1 इंटू टी माइनस वन, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट l1 t माइनस वन अपॉन t, so therefore b will be, this is equal to l1 into t minus 2. Now we have to find the dimension formula of a and b, so we find a is equal to m0 l1 t minus 1 and we find b is equal to l1 into t minus 2. Now दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे, आपको गिवन है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, वी वेलोसिटी है, अगर आप वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो आंसर वेलोसिटी आएगा। ये प्लस का साइन है तो प्लस लिखा आपने, ये वेलोसिटी है, इट मीन्स वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी आंसर वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, ये v वेलोसिटी है तो देयरफॉर a वेलोसिटी के इक्वल है, a इक्वल वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, तो देयरफॉर a का डायमेंशन होगा m0 l1 t minus 1। अगेन कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, bt इज इक्वल टू वेलोसिटी, bt इज इक्वल टू वेलोसिटी, b इंटू टाइम, velocity is l1 t minus 1, so b is equal to l1 t minus 1 upon t, इसे शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड, so b will be l1 into t minus 2, so we find the dimension formula of a m0 l1 t minus 1 and the dimension formula of b is we find m0 l1 t minus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है f इक्वल ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, f is force, t is time, a and b are constant and you have to find the dimension formula of a and b. This is application of like quantities can be added or subtracted. Now f is force, हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इक्वल, आप ऐसे लिखेंगे फोर्स इक्वल फोर्स प्लस फोर्स। अगर आप फोर्स और फोर्स दोनों सेम क्वांटिटी हैं, फोर्स एंड फोर्स, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर फोर्स आएगा, तो देयरफॉर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करो, f इज फोर्स, ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स, नाउ वी कैन राइट ए टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू फोर्स, वी नो द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, अब आप डायमेंशन फार्मूला पुट करो, टी टाइम में आपको गिवन है टी इज टाइम, f इज फोर्स, टाइम का डायमेंशन फार्मूला t1, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला दिस इज m1 l1 t minus 2, a is equal to, now we can write m1 l1 t minus 2 upon this is t1, after solving this we get m1 l1 t minus 3, we find the dimension formula of m1 l1 t minus 3। फर्स्ट एंड सेकेंड को दोबारा कंपेयर करो, अगेन कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, बी टी क्यूब इक्वल टू फोर्स, bt cube equal to force, now we can write here bt cube this is equal to force, therefore
Now compare Bt cube equal to force, T is time, so it will be T power 3. Dimension formula of force is m1 L1 T minus 2. Now we can write B equal m1 L1 T minus 2 upon T power 3. Therefore we get B equal m1 L1 T minus 5. So we get the dimension formula of A, m1 L1 T minus 3, and the dimension formula of B is m1 L1 T minus 5. Now you can solve your practice problem on this application. If you find any doubt, then you can send me your problems. I will solve that.